Yeah, I am continuing with part two of the recording. This is the same lecture, but I have split it into two parts. And हमने lecture इस जगह के ऊपर किया था that we wanted to see, we had seen this entire process, जहाँ पर we saw के top down parsing कर रहे हैं. We saw this process जहाँ पर आपको एक input मिली है और आप grammar में से start symbol लेके start करते हो. And you keep matching what is at the top of your stack to what is at the start of your input. And essentially this table over here is telling you कि आपने कौन सा production लगाना. So we went over this entire parse in the last part of this lecture where we kept figuring out कि production कौन सी लगानी है by saying. So randomly if I pick this line and I say कि मैंने इधर मेरे पास E है और इधर मेरे पास प्लस है, तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने production कौन सा pick करना है. I will go over here. So, sorry, E नहीं था, E dash था, E dash and then the plus, and that is telling me कि E dash goes to plus TE वाला production मैंने लगाना है. And then I am going to replace uh, the production by whatever I am seeing over here, depending on the match that I'm getting. So we saw कि ये सारी repeatedly लगाते लगाते eventually you will come down to the dollar sign. Dollar sign we said was a bit important for us because dollar sign was important for us because this is essentially a placeholder that we stick at the end of our E of our start production on the stack, and that we stick at the end of our input. और end के ऊपर सारा process करने के बाद end के ऊपर अगर आपके पास खाली दो dollar signs रह जाएं, as you can see in the last row over here, so you are going to assume कि आपका parse जो है वो correctly perform हो गया, and you can say that the input string that you received was part of the language that you were testing for. इसको हैंडल करने के लिए essentially, so now we're seeing कि वो आपका parse table जो ऊपर बना हुआ है वो किस तरीके से बनता है. Essentially you're seeing कि नॉन टर्मिनल वाले कॉलम के अंदर आपने सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स डाले हुए हैं और इनपुट सिंबल के अंदर आपने सारे के सारे टर्मिनल्स डाले हुए हैं. सो यू हैव योर आईडी, यू हैव योर प्लस, यू हैव योर एस्टरिस्क, ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है. एक एडिशनल चीज हमने डाली हुई थी डॉलर, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे टू रीच द एंड ऑफ आवर or to confirm that we have correctly reached the end of our parse. So in addition to all of your grammar symbols जो कि आपको इधर नजर आ रहे हैं और इधर नजर आ रहे हैं, एक आप काइंड ऑफ जबरदस्ती पुट इन करते हो टू बी एबल टू गेट योर टू बी एबल टू फिगर आउट कि आप अपने पार्ट्स के एंड के ऊपर पहुंच गए हो. स्टिल हैवंट सीन कि ये अंदर का पार्ट किस तरह से आना है, उसके ऊपर हम आने लगे हैं. एसेंशियली दिस इज हाउ यू से कि मेरे टेबल का स्ट्रक्चर ऐसे होगा. सो हमने ये प्रोसेस देख लिया एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड द टेबल एंड वी आर नाउ क्लियर ऑन दिस कि आपके टेबल का स्ट्रक्चर ये होगा कि आपने कॉलम के ऊपर सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स डालने हैं, रो के ऊपर सारे के सारे इनपुट सिंबल्स डालने हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि आगे हमारे पास कोई प्रोसेस होगा जिससे हमने ये फिगर आउट करना है कि ई गोज टू आईडी वाले सेल के अंदर क्या डालना है. एंड ये कैसे हो रहा है कि कुछ सम ऑफ दीज आर एक्चुअली एम्प्टी, और इसेंशियली अगर आपके इस पार्ट्स के अंदर कोई एम्प्टी वाली जगह के ऊपर आप आ जाते हो ना, दैट इज गोइंग टू टेल यू कि आपका पार्ट्स फेल हो गया. So how do we come up with this table which seems to be telling you how to perform the parts in a very clean and systematic manner? So how do you get a parts table from your grammar is what we're going to be doing next. So इसको करने के लिए we are going to need two sets जिसके नाम आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं. The first set and the follow set, इनको हमें create करना है. And these sets, you are going to see that these are going to be created by going through your grammar and figuring out कि किस ये कैसे पता चलेगा कि पहले ये चीज़ आनी है या अगर ये वाली चीज़ आनी है तो इसकी जगह के ऊपर ये डालना है. Essentially, during your top-down parsing, your first and follow sets are going to allow you to choose कि कौन सी वाली production apply करनी है based on the next input symbol that we were just doing on the earlier slide. And using these sets, you are going to build up your parse table ताकि आप recursion हटा के you are going to get the table to tell you कि कौन सी वाली production इस्तेमाल होनी है. So we are still doing a predictive parse. Predictive meaning कि
मुझे नेक्स्ट टोकन देख के आई एम एबल टू मेक द डिसीजन कि मैंने कौन सी वाली रिप्लेसमेंट चूज करनी है। बट नाउ द चेंज दैट वी मेड इट कि हमने रिकर्जन निकाल दी है कम्प्लीटली। वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द टेबल, लेकिन टेबल इस्तेमाल करने के लिए वी आर नाउ गोइंग टू बिल्ड द टेबल फर्स्ट। सो टेबल बिल्ड करने के लिए जो आपको एल्गोरिदम्स चाहिए उनको देखने से पहले, सो टेबल बिल्ड करने के लिए यू आर गोइंग टू नीड अ कपल ऑफ एल्गोरिदम्स, and after that you are going to be able to do the parsing easily. but उन algorithms को study करने के लिए we need to have study करने के लिए और apply करने के लिए we need to have a couple of terms on our fingertips ताकि we can then refer to them when we're talking about the algorithm. The first term is nullability. और nullability को ऐसे define किया जाता है कि with the formal definition that a non-terminal, let's say A is going to be nullable अगर आप A को किसी भी series of replacements से, and this asterisk is also saying कि एक direct A goes to epsilon वाला, sorry, epsilon वाला replacement भी हो सकता है, but basically ये notation कह रहा है कि A going down to epsilon through any number of replacements will mean कि A जो है वो nullable है. And this is kind of intuitive in the sense कि ये English से भी make sense करता है कि अगर आप A को किसी ऐसे sequence के अंदर replace करते जाओ कि eventually एक epsilon आ जाए, उसका मतलब है कि वो nullable है, क्योंकि वो ख़त्म हो सकता है essentially आपकी किसी भी sequence of replacement से. तो नलबिलिटी का सबसे इजी केस या सबसे बेसिक केस जो है वो ये वाला है जिसके अंदर ए इज डायरेक्टली गोइंग टू एन एप्सिलॉन और अ नल. बट देयर कैन बी अदर केसेस जहाँ पर आपका ए नलेबल है, जहाँ पर आपको डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहा. तो ओवर हेयर यू आर सीइंग ग्रामर जिसके अंदर ए गोज टू एप्सिलॉन वाला तो कोई प्रोडक्शन नहीं है, बट यू हैव अ प्रोडक्शन जिसके अंदर इस तरह से आपका एप्सिलॉन आ रहा है कि ए इज टर्निंग इनटू अ बी एंड अ सी, और जो बी भी है वो अपने थर्ड ऑप्शन से एप्सिलॉन के ऊपर चला जाता है, एंड आपका सी भी थर्ड ऑप्शन के अंदर एप्सिलॉन के अंदर चला जाता है. तो इवेंचुअली थ्रू सम सीक्वेंस ऑफ रिप्लेसमेंट्स ए विल बिकम नल. सो इस केस के अंदर भी, सो दिस इज द वेरिएंट जहाँ पे, और दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल वेरिएंट्स जिसके अंदर आपका ए नल के ऊपर चला जाता है. The second term that we want to take a look at is a sentential form. This is something you might remember from automata, but basically जब आप अपने डेरिवेशंस कर रहे होते हो, तो दिस इज जस्ट अ टर्म यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू दिस. आपको पता है कि आपके पास अगर कोई ग्रामर है और आप रिप्लेसमेंट्स करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, एंड इवेंचुअली यू आर कमिंग डाउन टू द ए, द स्मॉल ए. बड़े वाला ए नॉन टर्मिनल है, छोटे वाला ए टर्मिनल है. सो बेसिकली आप जितने भी सीक्वेंसेस के बाद जिस भी रिप्लेसमेंट्स की सीक्वेंस के बाद फाइनल अपने सेंटेंस के ऊपर पहुंचोगे, तो वो जितने भी इंटरम आपके स्ट्रिंग्स हैं जो आपको अंडरलाइन नजर आ रहे हैं इस वक्त, दीज आर गोइंग टू बी रिफर्ड टू एज सेंटेंशियल फॉर्म्स. और वो जो फाइनल आपका आंसर आता है जो कि आप कहते हो कि दिस स्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ माई लैंग्वेज, उसको आप सेंटेंस कहोगे. The two terms that we need or we need to recall from automata, एक nullability और एक sentential form. And then we want to see कि जो हमने अपना नॉन रिकर्सिव वाला पार्सर जो अब बनाना है, उसके लिए we need to first compute, keeping this terminology in mind, we need to compute the first set, then we need a way to compute the follow set, and then we need a way to compute the parse table. अब ये कंप्यूटेशन हो रही है अगेन, सो काइंड ऑफ कीप इन माइंड कि ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, इट इज़ गोइंग टू बी एन एल्गोरिदम जिससे आप कह रहे होगे कि ये स्टेप्स हैं जिससे आपको फर्स्ट सेट मिल जाता है, ये स्टेप्स हैं जिससे आपको फॉलो सेट मिल जाता है, और ये स्टेप्स है जिसके थ्रू आप फर्स्ट सेट और फॉलो सेट को इस्तेमाल करके अपना पार्स टेबल बना लेते हो, जिसके थ्रू फिर आप यू कैन डू दैट पार्सिंग दैट वी जस्ट सॉ अर्लियर, जिसके अंदर आप बस पिक करते जाओगे फ्रॉम द पार्स टेबल दैट दिस इज द प्रोडक्शन दैट आई वांट टू यूज. बट अगेन यू आर एबल टू डू दैट सो इजीली बिकॉज अभी इस प्रोसेस के अंदर आपका मैक्सिमम एफर्ट जा रहा होगा कि फर्स्ट सेट कैसे बनाना है, फॉलो सेट कैसे बनाना है, और फिर पार्स टेबल जो है वो कैसे बनाना है. So we are going to do with the go with the first step. So इसके अंदर तो the process is or the format is going to be दोनों फर्स्ट सेट और फॉलो सेट के अंदर
कि पहले आई विल गिव यू अ डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट सेट एंड द फॉलो सेट, जब हम फॉलो सेट पे आएंगे तो फॉलो सेट की, एंड देन वी आर गोइंग टू गो थ्रू द सेट ऑफ स्टेप्स जिसके थ्रू आपका फर्स्ट सेट जो बन जाता है, and then I'm going to apply those set, or we're going to actually try to understand those set of steps through a couple of examples that I have in my slides. So first step का definition ये है कि let's say कि alpha is a set, any set of grammar symbols, जिसके अंदर से हम कह सकते हैं कि alpha कोई भी एक symbol हो सकता है इनके अंदर से। तो alpha का first जो है, तो alpha is essentially just a placeholder for any of the symbols that you can get in your grammar। वो terminals भी हो सकते हैं, non terminals भी हो सकते हैं, but फिर हम क्या, अगर this is the case, तो first of A is going to be the set of terminals that appear at the start of strings derived from alpha। एंड अगेन इसका एग्जांपल आप देखोगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। सो और इफ यू कम बैक टू दिस डेफिनेशन आफ्टर टेकिंग अ लुक एट द एग्जांपल, इट इज गोइंग टू बी क्लियरर, बट जस्ट टू काइंड ऑफ कीप थिंग्स इन सीक्वेंस आई स्टिल वांट टू गो ओवर द डिस्कशन ओवर द डेफिनेशन एट दिस पॉइंट। So definition is, first of alpha is the set of terminals that appear at the start of strings derived from A। तो ए से जितनी भी चीज़ें बनेंगी उसके शुरू में जो टर्मिनल्स आ रहे होंगे वो आप सॉरी नॉट ए, अल्फा के फर्स्ट के सेट में डाल दोगे। और अगर अल्फा किसी ना किसी तरीके से नलेबल आपको नज़र आता है तो फिर आपने अल्फा के फर्स्ट के अंदर नल भी डाल देना है, या एप्सिलॉन, अगर आप उसको एप्सिलॉन के सिंबल से इस्तेमाल कर रहे हो तो एप्सिलॉन भी उसके अंदर डाल देना है। So this was the definition. How are we going to compute it? Yeah. So recall again, just on this previous slide, we said कि alpha to kind of you're using as a placeholder for any terminal or non-terminal in your grammar. So our first computational step is कि अगर तो जिस सिंबल को इस वक्त मैं कंसिडर कर रही हूँ, और मैंने ये सब सिंबल्स के लिए करना है बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर इन योर टेबल हमने सारे के सारे सिंबल्स जो थे वो लिस्ट आउट कर लिए थे एक कॉलम के अंदर और एक रो के अंदर। वी आर सेइंग कि अगर एक्स जो हम इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं सिंबल, अगर वो टर्मिनल है तो फर्स्ट ऑफ एक्स इज जस्ट एक्स। तो टर्मिनल इज एसेंशियली पिछले वाले एग्जांपल्स के अंदर द स्मॉल केस लेटर्स, जो टेबल हमने जिसका जनरेट किया था उसके अंदर आईडी टर्मिनल था, ब्रैकेट टर्मिनल था, या जो अगर आप ए बी सी वाले ग्रामर्स कर रहे होते हो तो उसमें स्मॉल लेटर्स जो होते हैं वो टर्मिनल्स होते हैं। सो इफ एक्स इज अ टर्मिनल देन फर्स्ट ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी द टर्मिनल इटसेल्फ। सो ये बहुत ट्रिवियल सा रूल है, ये आप सबसे पहले सबसे इजीली अप्लाई कर लोगे। द नेक्स्ट वन इज के सेकंड पार्ट ऑफ कंप्यूटिंग द फर्स्ट सेट इज कि अगर आपके पास एक प्रोडक्शन है एक्स गोज टू एप्सिलॉन, तो फिर एप्सिलॉन को भी एक्स के फर्स्ट के अंदर डाल दो। And then this is the major core part of your computation of the first step. So this is saying, so ये बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ लिखी हुई, लिखने में कॉम्प्लेक्स लग रही है, इट इज़ नॉट एक्चुअली दिस डिफिकल्ट। एसेंशली इसको किसी आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, दैट इज़ वाई आपको इतना ज़्यादा कुछ स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दिस इज जस्ट सेइंग दिस कि लेट्स से यू हैव प्रोडक्शंस ऑफ द एंड यू हैव, आपके सारे प्रोडक्शंस ही इसी फॉर्म के होते हैं कि x इज गोइंग टू सम नंबर ऑफ सिंबल्स। सो लेट्स से अगर आपका x जो है वो y1 पर जाता है, फिर y2 3 4, तो ऑल इन सीक्वेंस y1 के बाद y2 फिर 3 फिर सो ऑन n तक जा रहा है। तो फिर फर्स्ट ऑफ x इज इक्वल टू द फर्स्ट ऑफ y1, एंड इस पॉइंट के ऊपर आपने एप्सिलॉन को नहीं डालना। So first of x is equal to first of y1 except for epsilon and nothing else if y1 is not nullable। तो अगर तो y1 nullable नहीं है तो आपका काम इसी जगह के ऊपर रुक, you're done। अगर फॉर इंस्टेंस y1 nullable है, y1 nullable होने का मतलब है कि आप इमेजिन करो कि जो ऊपर लाइन लिखी हुई है वहां से हम y1 को हटा देते हैं, तो फिर y2 is going to be in the same position that y1 was। तो आपका वही वाला रूल काइंड ऑफ रिपीट होगा कि सो अगेन अगर y1 nullable हो गया तो फर्स्ट ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ y1 y2 एक्सेप्ट फॉर एप्सिलॉन। अगर y2 nullable है तो फिर फर्स्ट ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ y1 2 3 एक्सेप्ट फॉर एप्सिलॉन एंड नथिंग एल्स। तो इसेंशियली ये होता जा रहा है, रिपीटेडली आप ये कर रहे हो कि सॉरी x अगर तो आपकी नॉर्मल स्टेटमेंट है तो आप x के फर्स्ट के अंदर y1 का ही फर्स्ट डालोगे,
एक्सेप्ट फॉर एप्सिलॉन, और फिर रुक जाओगे। लेकिन अगर y1 नलेबल है तो फिर आप फर्स्ट ऑफ उसके नेक्स्ट वालों को भी डालते जाओगे, और उसके बाद नेक्स्ट वालों को भी डालते जाओगे, और उसके बाद नेक्स्ट वालों को भी डालते जाओगे, until you reach kind of a place जहाँ पर nullability खत्म नहीं हो रही। And उसके बाद for all of the above, if all first of y1 that are being included uh, in your x के first के computation, तो फिर एप्सिलॉन भी डाल दो। तो अगर आप एंड तक पहुंच जाओ और सारे नलेबल होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर फिर आप उसके अंदर एप्सिलॉन इंक्लूड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। Again, if this seemed a little bit confusing, it is because ये अभी abstract है. We are going to make it more concrete right now. So this is how you are actually going to run the algorithm. So you are going to do this. आपने कहना है हमने first set compute करना है. So we are writing down all of our non-terminals over here. टर्मिनल का भी फर्स्ट होता है, लेकिन टर्मिनल का फर्स्ट जो है वो ट्रिवियल चीज़ होती है कि अगर फॉर इंस्टेंस प्लस का फर्स्ट है तो प्लस का फर्स्ट प्लस ही है, या एस्टरिस्क का फर्स्ट है तो एस्टरिस्क का फर्स्ट प्लस ही है, या आईडी का फर्स्ट है तो उसका भी फर्स्ट प्लस आईडी ही होगा। तो ईच ऑफ द नॉन टर्मिनल्स each of the terminals are going to have firsts as well, but terminals के first terminals ही होते हैं। जिस चीज़ को आपको एक्चुअली कंप्यूट करना होता है that is the first of the नॉन टर्मिनल। सो हमने सबसे पहले तो अपना ना लिस्ट कर दिया कि दीज आर द थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट। वी आर गोइंग टू से ई है हमारे पास, ई डैश का फर्स्ट ई का निकालना है, ई डैश का निकालना है, टी का, टी डैश का, एंड देन एफ का। सो हाउ डू वी फिल दीज अप? आई एम गोइंग टू गो ओवर द सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में मैंने किया हुआ है। वन थिंग दैट यू वांट टू कीप इन माइंड इज के इस वक्त जो मेरे पास आंसर्स जिस ऑर्डर में फिल होने शुरू होंगे, इवन इफ यू start doing them in some other order, ऑर्डर से बहुत बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इवेंचुअली बाय रिपीटेडली अप्लाइंग द रूल्स आप एक सेम स्टेट के ऊपर पहुंच जाओगे रिगार्डलेस ऑफ विच ऑर्डर यू बिगिन कंप्यूटिंग दैम। सो ये हो सकता है कि आपने ई डैश पहले लिखा हो या कुछ इस तरह का कर दिया, बट सिस्टमैटिकली मैं चल रही हूँ, सो आई हैव लिस्टेड दम आउट इन द ऑर्डर इन विच आई गॉट the grammar and I am filling these out systematically, but in case you ये इस order का बहुत ज़्यादा उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता algorithm की application के ऊपर। तो आप किसी किस्म किसी order की भी application करोगे तो that is going to be fine. So don't worry कि ये अगर मैंने पहले वाला ई डैश गोज टू ई डैश का एप्सिलॉन ऐड किया और टी डैश का एप्सिलॉन ऐड किया है, तो अगर आपने पहले कोई और चीज़ ऐड कर दी तो उससे कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। इवेंचुअली यू विल एंड अप एट द सेम स्टेप्स। ये रिपीटेडली आइटरेटिवली अप्लाई होती है प्रोसेस, एंड इवेंचुअली यू एंड एट अ स्टेबल स्टेट। सो ऑर्डर डज नॉट रियली मैटर, डू नॉट वरी अबाउट द ऑर्डर। लेकिन मैंने इसके अंदर ये किया है कि मुझे क्योंकि इमीडिएटली नज़र आ रहा था कि ई डैश भी एप्सिलॉन के ऊपर जा रहा है और टी डैश भी एप्सिलॉन के ऊपर जा रहा है, एंड दिस वाज वन ऑफ आवर रूल्स जो कि शुरू में हमने पढ़े हैं फर्स्ट सेट के कैलकुलेशन के अंदर। तो मैंने फौरी तौर के ऊपर किया कि ई डैश के फर्स्ट के अंदर भी मैंने एप्सिलॉन डाल दिया और टी डैश के फर्स्ट के अंदर भी मैंने एप्सिलॉन डाल दिया। आई कैन अप्लाई एनी ऑफ द रूल्स दैट आई हैव, बट लेट्स से कि मैंने ये किया है कि जो मेरे पास थर्ड रूल था, जो इतना लंबा सा रूल लिखा हुआ था कि फर्स्ट ऑफ दिस ये होता है, ये होता है, एंड सो ऑन। सो ओवर हेयर आई हैव, मैंने रूल 3 लिखा हुआ है और मैंने लिखा है कि मैंने रूल 3 अप्लाई किया है ई डैश गोज टू प्लस टी ई डैश वाले प्रोडक्शन को, सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ। So I've decided to apply this rule, third rule to this production. Oops, मैंने एक skip किया है, एक accidentally मुझसे skip हो गया, but here we go, we are back. So मैंने इधर मैंने पिक किया हुआ है कि रूल 3 अप्लाई करना है to e dash goes to plus t e dash, and essentially that was saying, वो आपके पास एक equation थी that was आपके पास, sorry I'm at the correct slide again. So you had an equation that was saying कि if e dash goes to plus t e dash, तो e dash के फर्स्ट के अंदर आपने सारी वो चीज़ें डाल देनी है जो आपको इस सीक्वेंस के अंदर नज़र आ रही हैं शुरू के अंदर। तो इस वाले बिट का फर्स्ट जो है वो खाली प्लस है, ठीक है। एंड अगर हम इसका सेकंड पार्ट अप्लाई करें तो प्लस तो हट नहीं सकता। तो यहाँ पर मेरा ये वाला
ये वाला पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है ये रुक जाएगा, बिकॉज इसेंशली ई डैश को मैं प्लस के ऊपर लेके गई हूँ और मुझे पता है प्लस नहीं हट सकता, तो मैंने बाकी टी ई डैश वाले पार्ट को मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरा रूल 3 तो यहाँ पर अप्लाई हो गया। आफ्टर दैट आई हैव चोजन टू अप्लाई रूल 3 टू टी डैश गोज टू एस्टरिस्क एफ टी डैश, एंड दिस इज सिमिलर इन दैट के इसके शुरू के अंदर भी एक वो आ रहा है, टर्मिनल आ रहा है, विच मीन्स कि वो हट नहीं सकता वहां से। सो मैंने कहा है कि टी डैश के फर्स्ट के अंदर भी एक एस्टरिस्क ऐड कर दें। तो आई हैव क्यूमुलेटिवली एडेड 4 सिंबल्स टू माय फर्स्ट सेट्स। ई डैश के अंदर एप्सिलॉन और प्लस आ गया, टी डैश के अंदर एप्सिलॉन एंड एस्टरिस्क का सिंबल आ गया। And next I've chosen to apply F goes to rule number 3, the same rule. F goes to bracket E and a closed bracket and an ID. And over here you can see कि इसके अंदर दो elements add हो गए हैं एक ही step के अंदर। But if you look at it closely, actually मैंने rule 3 apply किया दो productions के ऊपर, because there is an or between in the F production। इसका मतलब है कि इसको when you read this out, this actually means कि एक production है कि F goes to E with the brackets on both sides, the second production is F goes to ID with the brackets on both sides। तो पहले वाले से मुझे मिलेगा bracket open की addition into first of F, और second वाले से मिलेगा मुझे ID की addition into first of F। So my set looks something like this right now. So I will see कि मैं rule, so again if I'm trying to kind of see कि अब मैं next कौन सा rule लगाऊं, तो I can see कि I've kind of moved through my entire set with the rule. So I can now do kind of a repetition. So I am going to look at rule 3, okay, and I have a different type of now production। सो पहले तो मैंने वो वाले पिक किए थे जिसके अंदर प्लस आ रहा था और एस्टरिस्क आ रहा था, ओपन वाला ब्रैकेट आ रहा था एंड आईडी आ रहा था। नाउ आई हैव समथिंग इन माय इमीडिएट प्रोडक्शन। सो टी गोज टू एफ टी हो रहा है, इसका मतलब है एफ को मुझे चेक करना पड़ेगा कि एफ नलेबल है या नहीं है। एंड आई कैन सी इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्योंकि मेरी ग्रामर इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो आई कैन सी कि एफ नलेबल नहीं है। तो जब मैं टी गोज टू एफ टी डैश को एनालाइज कर रही हूँ तो आई कैन सी कि बस मैंने अपने टी के अंदर एफ का फर्स्ट डालना है, और एफ क्योंकि बेसिकली हट नहीं सकता इस जगह के ऊपर, तो आई एम डन विद दिस एप्लीकेशन ओवर हेयर। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू से कि आई एम जस्ट गोइंग टू से कि फर्स्ट ऑफ ई इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ टी। तो व्हाट आई हैव डन इज कि टी के अंदर, टी के फर्स्ट के अंदर मैं जितनी चीज़ें कंप्यूट कर चुकी थी इससे पिछले वाले स्टेप के अंदर, पिछले वाला स्टेप ये था, पिछले वाले स्टेप के अंदर मैं जितनी चीज़ें डाल चुकी थी, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पिक दोस अप। सो ई वाज एम्प्टी अर्लियर एंड टी के अंदर ऑलरेडी ये वैल्यूज पड़े हुए थे, एंड ओवर हेयर आई एम सेइंग कि फर्स्ट ऑफ ई क्योंकि मैंने कंप्यूट नहीं किया था तो अब फर्स्ट ऑफ ई के अंदर फर्स्ट ऑफ टी भी आप डाल दो। So that I have put in, and essentially, अच्छा, so मैंने टी टी को भी fill up कर दिया with the first values, and then I am going to say कि उसी similar किस्म का रिप्लेसमेंट मैंने डाला है रूल 3 को अप्लाई करते हुए ई गोज टू टी ई डैश के ऊपर, पर ऐसे टी तो हट नहीं सकता, बट so I don't need to go any further than that because T is not nullable। If we do a quick look at our grammar, तो हम not as simple as F, but it's pretty clear कि T भी डायरेक्टली नल के ऊपर या इनडायरेक्टली भी किसी ना किसी तरीके से completely एप्सिलॉन के ऊपर नहीं जा रहा। So we are going to say कि first of E is going to be the first of T and फर्स्ट ऑफ टी ओनली, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बिकॉज टी इज नॉट नलेबल। तो जो फर्स्ट ऑफ ई पहले एम्प्टी पड़ा हुआ था उसके ऊपर मैंने सारी वो वैल्यूज कैलकुलेट कर दी हैं जो टी के ऊपर मैंने डाली हुई थी।
bracket open and ID, those have been added. So how do we know this kind of completes the computation of the first step of the first set. ये दूसरा एग्जाम्पल शुरू हो रहा है. How do we know कि अब इसके अंदर अब the only question that remains is कि मैंने तो इधर लिखी हुई थी कि ये वाला मैंने ऐड ये वाला रूल अप्लाई कर दिया, अब ये वाला कर दिया, अब ये वाला कर दिया एंड सो ऑन. तो हाउ डिड आई नो कि ये वाले रूल्स इस तरह से अप्लाई करने हैं एंड हाउ डिड आई नो कि मैंने इधर रुक जाना है. So try this exercise out. I would recommend that you take a paper and pen and try this exercise out. लेकिन अगर आप यही वाले rules repeatedly भी अब apply करते जाओ और किसी भी order में करते जाओ या इसी example को शुरू से लेके चलो और किसी भी order के अंदर rules apply करते जाओ, eventually ना you are going to see कि इसके अंदर कोई नई additions नहीं हो रही. यही चीज़ आप repeatedly apply करते जाओगे कि E goes to T, E dash के ऊपर रूल 3 लगाएं. तो these are events essential, these are the only symbols that you have और यही वाले जो हैं ये repeatedly इसके अंदर डलते जाएंगे. So if you reach a point, तो इसको करने का तरीका ये है कि go pick up your rules 1 2 3 जो rules हैं और उनको अप्लाई करते जाओ अपने प्रोडक्शंस के ऊपर. फर्स्ट ऑन दिस वन, ऑन दिस वन, ऑन दिस वन, ऑन दिस वन. इवेंचुअली आपको थोड़ा सा इंटुइटिवली फील होना शुरू हो जाएगा कि ये वाला इजी रूल होता है, इसको पहले करके जस्ट गेट इट ओवर विद. उसके बाद जो इधर सीक्वेंस यूज हुआ है ना उसके अंदर पहले वो रूल उधर अप्लाई किए जिधर आपके पास यहाँ पर टर्मिनल था बिकॉज दैट वाज जस्ट इजियर टू अप्लाई. और फिर सेकंड सेट के अंदर हमने उधर अप्लाई किया जहाँ पर आपके पास यहाँ इस वाले पोजीशन के ऊपर नॉन टर्मिनल्स थे जिसके अंदर पोटेंशियली लंबा कैलकुलेशन आ सकता है. इधर नहीं आया इंसिडेंटली. पोटेंशियली लंबा कैलकुलेशन तब आ सकता है कि अगर मैं इसके ऊपर या फॉर इंस्टेंस ये यही वाली खुली हुई है एक्चुअली. सो अगर मैं यही वाला प्रोडक्शन ले लूँ, टी तो नलेबल नहीं है तो मेरी कैलकुलेशन इधर ही रुक गई. लेकिन दिस कैलकुलेशन कुड हैव गॉन फर्दर. अगर टी फॉर इंस्टेंस नलेबल होता तो फिर मैं कहती कि ई के अंदर ई डैश का फर्स्ट भी डाल दो. तो उस केस के अंदर इसके अंदर एडिशंस होती फर्दर. लेकिन इस केस के अंदर बिकॉज दिस इज अ फेयरली सिंपल ग्रामर आपके पास कोई एडिशंस नहीं हो रही. तो लेट्स ये जो मैं एग्जांपल अभी स्पीक आउट लाउड कर रही थी, लेट्स टेक एन एक्चुअल ग्रामर जहां पर ये इशू आ सकता है. एंड बिकॉज आई हैव काइंड ऑफ टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये वाला इश्यूज ग्रामर के अंदर आएगा. तो या फिर आप कोई नई वाली ग्रामर भी सॉल्व कर रहे हो, पहली चीज आपने ये करनी है कि आपने चेक कर लेना है और गिन के लिख लो कि मेरे पास अगर इसके अंदर कोई इनडायरेक्ट नलेबल्स, डायरेक्ट वाले तो आपको ऑब्वियसली नजर आ रहे हैं कि y गोज टू नल है, सो y इज मोस्ट ऑब्वियसली अ नलेबल. लेकिन इसके अंदर मैंने हिंट अभी दिया था कि इसके अंदर इनडायरेक्ट नलेबल्स भी हैं. तो बट स्टिल प्रीटी सिंपल किस्म का ग्रामर है ये. सो इफ यू लुक एट इट अ लिटिल बिट you will see कि इसके अंदर x भी nullable है because you have a production x goes to y and then y goes to epsilon. So x goes to y to epsilon से x भी through a sequence of steps epsilon के ऊपर चला जाएगा. So now we have indirect वाला nullable here as well. तो उस केस के अंदर आपको हल्का सा केयरफुल होना पड़ेगा. But again nothing that can really go wrong as long as you just keep applying the rules. Rules के order से again फर्क नहीं पड़ता. Keep applying the rules until your set stabilize. तो उसमें हो सकता है कि शुरू में जब आप लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो तो a couple of times you do repetitions, लेकिन because it's a set, तो अगर एक सेट के अंदर आपका लेट से ए और सी पड़ा हुआ है और दूसरी दफा ए और सी फिर से भी ऐड कर दो, तो सेट की हैंडलिंग के अंदर यू नो कि अगर आपके पास ऑलरेडी ए पड़ा हुआ है तो एक और ए नहीं डालना. दैट मीन्स इट्स स्टिल देयर. सो यू इट्स इफ यू आर डूइंग दिस केयरफुली आपका कोई मिस्टेक ऐसा सच होने का चांस नहीं है. इट जस्ट टेक्स अ लिटिल बिट केयर बिकॉज वो नलेबल वाला इशू जो है दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर ग्रामर मे बी वन मोर टाइम टू मेक श्योर टू सी कि आपने कुछ मिस नहीं किया. तो इसके अंदर अगेन सीक्वेंस काइंड ऑफ उसी तरह का इस्तेमाल किया हुआ है कि सबसे पहले तो मुझे सीधा सीधा डायरेक्ट नलेबल नजर आ रहा है कि y गोज टू एप्सिलॉन. तो मैं y के फर्स्ट के अंदर फौरी तौर के ऊपर मैंने एप्सिलॉन डाल दिया. दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग और दैट इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ माई स्टेप्स दैट आई कैन क्विकली अप्लाई. बहुत बड़ी ग्रामर नहीं है ये, तकरीबन फौरन ही ख़त्म हो जाएगी. द नेक्स्ट वन इज वी आर सेइंग कि मैंने फर्स्ट ऑफ अब मैंने इसमें वो गिन के नहीं लिखी हुई आपकी रेप्लिकेशंस, बट यू कैन पिक दिस अप बिकॉज दिस इज ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव में थोड़ा सिंपल ग्रामर है. फर्स्ट ऑफ जी के अंदर डी आएगा बिकॉज ऑफ दिस. यू कैन सी दिस प्रिटी क्लियरली. फर्स्ट ऑफ वाई के अंदर सी आएगा बिकॉज ऑफ दिस. यू कैन सी दिस प्रिटी क्लियरली.
और फर्स्ट ऑफ एक्स के अंदर ए आएगा, यू कैन बिकॉज ऑफ दिस यू कैन सी इट प्रीटी क्लियरली। और क्योंकि ये तीनों जो थे ये टर्मिनल्स थे, तो इन वाले प्रोडक्शंस के अंदर तो आपको और किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द वन जहां पर आपको थोड़ी सी डेप्थ से देखना पड़ेगा। सो वी आर सेइंग वी आर अप्लाइंग, दिस इज द वन जहां पर वो रूल अप्लाई हो रहा है जो कि इतनी बड़ी स्लाइड के ऊपर पीछे लिखा हुआ था एंड प्रोबेबली वाज नॉट मेकिंग सेंस एट दैट पॉइंट, बट इसको अप्लाई करके विल गो बैक टू द स्लाइड एंड सी एंड होपफुली इट विल मेक सेंस नाउ। लेकिन ये यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन में देखोगे तो इट शुड बी मच इजियर। सो वी आर सेइंग इसको पकड़ते हैं, z goes to x y z एंड we're saying सबसे पहले तो सिंपल z के फर्स्ट के अंदर x का फर्स्ट आएगा, बिकॉज we're saying इसके फर्स्ट में जो कुछ भी है वो इसके फर्स्ट में आ जाएगा। तो x के फर्स्ट के अंदर आपके पास a पड़ा हुआ था, सो आपने a डाल दिया उसके अंदर। अब हमारे पास वो केस है जहां पर ये मैंने लिस्ट करके इसलिए लिखा हुआ बिकॉज यू कैन मिस इट अदरवाइज, बट क्योंकि x नलेबल है इसका मतलब है वी कैन इमेजिन कि यहाँ से हट गया है, जिसका मतलब है कि z के फर्स्ट के अंदर y का भी फर्स्ट आ सकता है। So everything that is the first of y except the epsilon is going to be a c added over there. So y के फर्स्ट के अंदर epsilon और c पड़ा हुआ था, epsilon मैंने रूल के हिसाब से नहीं डालना और c जो है वो मैंने कैरी ओवर कर दिया। उसके बाद मेरा y भी nullable है, so y is nullable, so first of c is equal to first of z, which is kind of फर्स्ट ऑफ जी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ जी, जो भी आपके पास जी में है वो उसके अंदर कॉपी ओवर कर दो। यू कैन इमेजिन कि मैंने डी ए सी फिर से डाला है और डी ए सी क्योंकि वो सेट था तो डी ए सी वाला सेट डी ए सी ही रहा है। एप्सिलॉन हमने यहाँ पर नहीं डाला बिकॉज आखिर के अंदर अब आप आ गए हो और जी के फर्स्ट के अंदर एप्सिलॉन नहीं था, तो वी डिड नॉट नीड टू ऐड एन एप्सिलॉन इनटू द फर्स्ट ऑफ सी। So essentially, this is uh, creating, this is then implementation of the rule that you saw on the slide back there, which I will go to at the conclusion of this. But इसके अंदर एक kind of last thing आप कर रहे हो कि you're applying rule 3 to x goes to y, जिसका मतलब है कि you're saying कि y के y के फर्स्ट में जो भी चीज़ है उसको x के फर्स्ट के अंदर डाल दो। एंड इफ फाइनली इधर वो वाली चीज अप्लाई हो रही है क्योंकि इधर y नलेबल है और y के फर्स्ट के अंदर भी एप्सिलॉन आपने उसी वजह से डाला हुआ है, तो आपने x के फर्स्ट के अंदर c तो डालना ही है, लेकिन बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ द एंड पार्ट कमिंग टू दैट रूल, तो आपने उसके अंदर एप्सिलॉन भी कॉपी करके डाल दिया। And after this, if you keep, sorry if follow आ गया, but after this, if you keep repeating the applications on the grammar, and again, पहली, even if I have to do this by hand right now, मैं इसके ऊपर से एक और दो दफ़ा करके अप्लाई करके देखूंगी कि सेट्स मेरे चेंज तो नहीं हो रहे, रूल्स एक और दफ़ा मैं ऐड करके देखूंगी। बट वंस आई नो कि मैं जितनी मर्जी दफ़ा ये रूल्स अप्लाई कर लूँ ये सेट नहीं बदल रहा, तो दैट मीन्स दैट आई हैव लैंडेड एट माई स्टेबल वर्जन ऑफ माई फर्स्ट सेट। सो ये जो मैंने रूल अप्लाई किए हैं अभी, ये वाला रूल जिस तरीके से अप्लाई किया, पर्टिकुलरली इन दिस केस वेयर आई सेड कि जी के फर्स्ट के अंदर एक्स का फर्स्ट आ रहा है और फिर एक्स नलेबल है, तो फिर जी के फर्स्ट के अंदर वाई का फर्स्ट भी कंसिडर करें, और फिर क्योंकि वाई नलेबल है तो फिर जी के फर्स्ट के अंदर इस जी का भी फर्स्ट कंसिडर करें, एंड देन यू डोंट हैव एन एप्सिलॉन इन दिस केस, एंड देन दिस वन वेयर यू आर सेइंग के एक्स के अंदर वाई का फर्स्ट रखें और फिर एप्सिलॉन इसलिए डालें बिकॉज वाई इज नलेबल। ये वाली ये बात है जो कि इस स्लाइड के ऊपर लिखी हुई थी, एंड व्हेन आई इंट्रोड्यूस दिस स्लाइड it still is looking a little bit confusing, but this is what it means when it says कि x, if x goes to y 1 2 3 any number of non-terminals, तो फिर आपने इसकी कंप्यूटेशन ऐसे करनी है कि पहले x के फर्स्ट के अंदर इसका फर्स्ट डाल देना है, और अगर ये हट सकता है तो x के फर्स्ट के अंदर इसका फर्स्ट भी डाल देना है, और अगर ये हट सकता है तो x के फर्स्ट में इसका भी फर्स्ट डाल देना है, एंड एवरी टाइम यू आर एडिंग द फर्स्ट, ऑब्वियसली टू का फर्स्ट तब डालोगे जब ये नलेबल होगा, जिसका मतलब है कि इसके फर्स्ट में एप्सिलॉन डाला होगा, तो उस केस के अंदर आपने एप्सिलॉन नहीं डालना, लेकिन जब आप एंड तक पहुंच जाओगे और ये वाई एन भी आपका नलेबल हो सकता होगा, उस केस के अंदर आपने एक्स के अंदर एक नल डालना है अदरवाइज, या एक एप्सिलॉन डालना है अदरवाइज नहीं डालना।
So ये वाला rule जो इतना लंबा लिखा हुआ था, again if you take a look at it from the example, it is not that difficult. यहाँ पर क्योंकि वो mathematical definition के हिसाब से लिखा हुआ है, so it is looking a little bit more complex. Otherwise this is not that difficult. एग्जाम के अंदर ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा that I will give you a grammar. You will have to compute the first set. I will give you the rules, but hope I think you would have seen right now कि ये rule ना आपको दिया भी हो. अगर आपने practice की हुई है तो you will understand what this rule is doing. लेकिन अगर आपने practice नहीं की हुई तो ये मैंने rule पूरा लिख के भी आपको दिया हो तो it is a little bit difficult to figure out कि ये rule कर क्या रहा है. So माई एक्सपीरियंस इज के जिन स्टूडेंट्स ने इसका प्रैक्टिस किया होता है उनको रूल्स नहीं भी दें तो दे आर एबल टू रन थ्रू द कैलकुलेशन प्रीटी क्विकली. बट अगेन इफ यू काइंड ऑफ फॉरगेट समथिंग या आपको कोई एक पर्टिकुलर रूल भूल गया है कि ये वाला मैंने चेक करना था ऐड किया है नहीं, तो इन एनी केस ये रूल रेफरेंस के लिए आपको एग्जाम्स के अंदर मिल जाएंगे. यू विल हैव टू जस्ट डू द एप्लीकेशन एंड फिगर आउट कि फर्स्ट सेट क्या है. So we are going to conclude the lecture over here. पूरी चीज अभी हमारी complete नहीं हुई. Let me just go back to the lecture, to the start of this, where we are saying कि this is what we were doing. तो हमने टॉप डाउन नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सर के लिए टेबल प्रोड्यूस करना है, और वो टेबल प्रोड्यूस करने के लिए हमने फर्स्ट सेट बनाना है, फिर हमने फॉलो सेट बनाना है, और फिर हमने पार्स टेबल उसका सेटअप करना है. तो वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट एंड देन इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स वी आर गोइंग टू सी कि फॉलो सेट कैसे बनना है और उसका फिर फर्स्ट सेट और फॉलो सेट दोनों को इस्तेमाल करके आपने पार्स टेबल कैसे बनाना है. But for now, we're going to conclude it at the computation of the first set, and then next time we will see के follow set के अंदर क्या होना है. I will upload this lecture and see you tomorrow and the day after tomorrow for the next section, and I am going to expect के किसी जगह के ऊपर कोई issue है तो वो देख सकते हैं. I can bring in a practice question that you can do and figure out के if there are any questions that you have that need to be answered. So otherwise we will conclude this lecture here at after doing the computation of the first set for the parse table for your top down non recursive predictive parser.